of you? Welcome to Gambardhi Junior College of Science, Pulgaon. I am Silaskar sir, going to deliver the lecture on rotational motion. Under the rotational motion, there is a subtopic kinetic energy of rotating body. So previous to see here the kinetic energy for the rotating body, we must to know here the basic concept about the kinetic energy. What is mean by the kinetic energy? जब अपन देखते हैं कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो फिर रेस्ट में है, तो अपने साथ वो एनर्जी रखते हैं खुद की. जब ये बॉडी सपोज मान के चलते हैं कि दिस इज द बॉडी और बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. बॉडी इज एट रेस्ट. इन दिस डायग्राम ए, दिस इज फिगर ए, द बॉडी इज एट रेस्ट हैविंग सम मास. देन दिस बॉडी विल हैव इट्स ओन एनर्जी and that type of energy is called as the potential energy. जब ये बॉडी के पास होगा, ये कितनी ऊंचाई पे बॉडी रखी है, इसका मास कितना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. So this type of the energy due to the position of the body, here the body is in its rest position, therefore it will have the पोटेन्शियल एनर्जी, ज्याला आपण स्थितीज ऊर्जा असे म्हणतो आहे मराठीमध्ये. सो पोटेन्शियल एनर्जी इन दिस केस, and potential energy is given by M into G into H, where M is called as the mass of the body, G is called as the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and h is the height where the body is considered. It may be the either the above the earth surface or at a certain height above the earth surface, or it may be the inside that of the earth, that is the depth, at a certain depth under the earth. So here this body is at rest having the energy is called as potential energy. याला काय म्हणतो आपण, स्थितीज ऊर्जा. आणि स्थितीज ऊर्जा दाखवली जाते पोटेन्शियल एनर्जी और द स्थितीज ऊर्जा is equal to m into g into h. So this is the one of the type of the energy. So secondly here is the kinetic energy. Kinetic energy denoted by letter kinetic energy K dot E dot. So if the body initially is at rest, suppose this point is B point, and if the force is applied on this body, then the body will move from point B to another point C. Therefore here the body will move from point B to point C. This is the C point. So here is the displacement of the body. ये जो हुआ है बॉडी का B से लेके C तक के जो भी इसने अंतर कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. यस, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट. अब क्या हुआ, ये बॉडी जब चलेगी है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो बॉडी का यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. कहाँ से हुआ, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक. और ये डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया आपने आफ्टर डिस्प्लेसेस पोजीशन, बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ यस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. बट अगेन while moving a body from point B to point C, it takes a certain time, and that is called as the time t. It requires the time t. This is called as the time.
Again body will move with the certain velocity. Suppose this body moves with the velocity u, that is initial velocity u, where this u is called the initial velocity. Initial velocity. And here after displacing the displacement here, the final velocity will be v. V is called here the final velocity. Final velocity of body. Therefore, all these notations, initial velocity u, final velocity v, displacement s, time t, acceleration a, velocity v, all these notations are related to one another by the equations, and that equations are known as the equations of the kinematics, or the equations given by the scientist Newton. So here, when body is in the motion, body will have this certain velocity, and therefore while traveling from one place to another, while moving from one place to another, it will have the certain type of the energy, and that type of the energy which is acquired by the body during its motion, due to its motion, is called as a kinetic energy. Therefore, the motion of a body due to its motion is called as kinetic energy. The energy of a body due to its motion, is called as kinetic energy. मान के चलते हैं कि बॉडी का सपोज क्या किया अपन यहाँ पे, सपोज here is the mass of body, और v is the velocity, of body. Then the kinetic energy of the body is given by, आता कायनेटिक एनर्जीला काय म्हणतो आपण, गतिज ऊर्जा असे सुद्धा म्हटलं जाते मराठीमध्ये. गतिज ऊर्जा, गतीमध्ये काय, ज्या बॉडीला गती असते आणि त्या गतीमुळे बॉडीला ऊर्जा प्राप्त होते, आणि त्या ऊर्जेला म्हणतो आपण गतिज ऊर्जा. त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये काय म्हणतो, कायनेटिक एनर्जी. सपोज या बॉडीचा मास किती आहे, कॅपिटल एम या अक्षराने डिनोट केला आपण, v वेलोसिटी आहे बॉडीची. देयरफॉर द कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, denoted by letters capital E is equal to half of the mass into velocity square. ये फार्मूला, दिस इज द फार्मूला. काइनेटिक एनर्जी is equal to half of the mass into velocity square. Therefore, here the kinetic energy for the body while moving in a straight line, while making its translation in a straight line path in the linear direction, then the kinetic energy will become as half of the m into v square. This is the formula for the kinetic energy, that is the translational motion में होगा, in translational motion or translation. So half of the m into v square, where m is the mass of the body, v is the velocity. Therefore here the kinetic energy, I am repeating here, this is the formula for the ट्रांसलेशनल मोशन. ये ट्रांसलेशनल हो रहा है बॉडी का यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे. जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगी विद अ सर्टेन वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द m into v square. This is for the translational motion. But
consider this point about the kinetic energy in a rotational motion. This is our topic of study. So here we have to see here the kinetic energy of rotating body. In this case, the body is considered to be rotated about the fixed axis. So, in order to find the derivation for the kinetic energy of the body rotating about the fixed axis, we have to consider here a rigid body. Consider here the rigid body. ये बॉडी मान के चलते हैं कि कोई एक बॉडी है और जिसका कोई शेप नहीं है बॉडी का. आप बोलेंगे कि सर को सर्कल निकालने नहीं आता. ये सर्कल नहीं निकाला मैंने, ये तो बॉडी का एनी शेप है. Here I am saying that consider the body of any shape like this, and this body is rotating about the fixed axis of rotation. ये बॉडी क्या है? एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है. So this is the axis of rotation. This is the axis of rotation. Axis of rotation. And body कैसे रोटेट हो रही है with the omega. This is the Greek letter omega. Here omega is called as the angular velocity of the body. Means here the body is rotating about the fixed axis of rotation with the angular velocity omega. बॉडी ऐसी घूम रही है, ऐसे मान के चलते कि ऐसे घूम रही है. So here this axis of rotation is perpendicular to the plane of the body. प्लेन ऑफ द पेपर भी बोल सकते हो, प्लेन ऑफ द फिगर भी बोल सकते हो. जैसे मान के चलते कि ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये एक्सिस है. ये ऐसे बॉडी रोटेट हो रही है लाइक दिस. एक्सिस फिक्स है, बॉडी रोटेट हो रही है. सो हियर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. Here is the center. So, as we have seen, any body is made up of the large number of the particles within it. So here, again this body is made up of large number of particles situated at a certain distances from the axis of rotation as shown in the figure. So here मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला पार्टिकल कंसीडर करता हूँ कि जिसका क्या है मास m1. दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m1. इसकी दूरी कितनी है? ये दूरी r1 डिस्टेंस पे है. मींस पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. m1 पार्टिकल का मास है, इसका डिस्टेंस कितना है? r1 है. कहाँ से है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. So here I am considering here the second particle. Suppose here is the second particle. ये second particle मान के चलते हैं जिसका मास क्या है? m2 मास. इसका डिस्टेंस कितना है? r2 है. कहाँ से है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से है. Means again here is the third particle. मान के चलते हैं कि जिसका मास कितना है? m3 है. डिस्टेंस कितना है इसका? r3 है. कहाँ से डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. अगर ये नेक्स्ट पार्टिकल इज द nth पार्टिकल, दैट इज द लास्ट पार्टिकल. सो दिस इज द nth पार्टिकल हैविंग मास m1 सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये ऐसा बॉडी का रोटेशन चल रहा है. अब बताओ मुझे कि जब ये बॉडी रोटेट होंगी तो इसके अंदर के जो पार्टिकल है वो रोटेट नहीं होंगे क्या? होंगे, ऑफकोर्स होंगे. जैसे मान के चलते कि कोई एक अपना बॉल लिया और बॉल के अंदर अपन ने थोड़े से इसमें कोई छर्रे डाल दिए और बॉल को मैंने ऐसे घुमाया तो क्या होगा? उसके अंदर के छर्रे रोटेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. वो छर्रे भी घूमने लगेंगे. दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक बॉल है, बॉल के अंदर से मैंने एक ऐसा सरिया डाला
ये एक्सिस हुआ, और अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉल रोटेट्स। और ये बॉल पे मैंने क्या किया, इंक का डॉट किया, रेड इंक का डॉट किया, समझे बात। अब क्या होगा, जैसे मैं ये बॉल को रोटेट करूंगा, ये जो मैंने डॉट किया था अभी रेड इंक का, वो भी क्या होगा, ऐसा रोटेट होने लगेगा, वो भी ऐसा सर्कल करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसा ऐसा। मीन्स व्हेन द बॉल रोटेट्स, the dot pointed on the ball again rotates with the same axis of rotation. But now in the next case I am pointing here the two dots now. As first dot is at the certain distance 5 cm from the axis of rotation, and now I am pointing there the second dot at the 7 cm distance from the axis of rotation. पहला डॉट कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, दूसरा डॉट कहाँ पे है, 7 सेंटीमीटर पे। अब मैं क्या करता हूँ, वो बॉल को या तो फिर सीढ़ी लीजिए, आपकी जो सीढ़ी है ना, आपकी सीढ़ी, वो सीढ़ी पे डॉट कीजिए आप। और जैसे मैं वो सीढ़ी को रोटेट करूँगा तो क्या होगा कि जो पहला जो डॉट है रेड कलर का, वो भी ऐसा सर्कल फॉर्म करेगा। इसके बराबर 2 सेंटीमीटर पे, पहला कहाँ पे है 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा कहाँ पे है 7 सेंटीमीटर पे। तो मान के चलते कि ये 5 सेंटीमीटर डॉट, 5 सेंटीमीटर वाला डॉट पहले यहाँ पे है रीडिंग का, और दूसरा डॉट कहाँ पे है 7 पे है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। जब ये सीढ़ी घूमने लगेगा तो क्या होगा, ये पहला जो डॉट है रेड इंक का ऐसा सर्कल तैयार करेगा, सर्कल क्रिएट करेगा। दूसरा डॉट जो है वो ब्लू सर्कल करेगा, पहला रेड सर्कल दिखेगा आपको जैसे ही सीढ़ी घूमने लगेंगी तो, और दूसरा ब्लू कलर का सर्कल आपको दिखने लगेगा। सो देयर विल बी 2 सर्कल्स ऑन द सीढ़ी और ऑन द वॉल। सो आई एम सेइंग दैट व्हेन द बॉडी रोटेट्स अबाउट द फिक्स्ड axis of rotation, each and every particle inside it will be rotated with the different radii and different linear velocities, linear speeds। मीन्स मान के चलते यहाँ पे कि बॉडी का क्या है, m1 मीन्स m1, m2 डैश 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 m, ये क्या है, masses of the particle, यानी masses of particle, masses of particles। और दूसरी बात क्या है, these particles of masses m1, m2, m3, these particles are situated at a different distance। कहाँ से, from the axis of rotation से। मान के चलते कि पहला जो पार्टिकल है जिसका मास कितना है m1, ये सिचुएट हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ r1 पे, ये m1 इज एट डिस्टेंस ऑफ r1, m2 इज एट डिस्टेंस ऑफ r2, m3 is situated at a distance of r3, and last particle m situated at a distance of r. So these distances are not equal, these distances are different for the different particles। Therefore here r1, r2, dash 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 rn are the distance of particle from the axis of rotation। बात आगे समझ में, सीधा मतलब है कि पहला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है r1 पे, दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है r2 पे, तीसरा पार्टिकल कहाँ पे है r3 पे। पर लेकिन यहाँ पे एक बात कॉमन है, जो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन है सभी पार्टिकल। डिस्टेंस भले ही अलग अलग है r1 r2, जैसे ही बॉडी रोटेट होगी तो क्या होगा, all the particles will be rotated in this circle, they will form the circles about the same axis of rotation। अब क्या होगा कि जो पहला पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, ये ऐसा सर्कल क्रिएट करेगा, ऐसा लाइक दिस, दिस सर्कल विल बी लाइक दिस, ये ऐसा सर्कल होगा लाइक दिस, ऐसा सर्कल। दूसरा क्या करेगा, लाइक दिस, इट विल बी मूव इन द सर्कल लाइक दिस।
g, अगेन इट विल बी रिवर्स, ऐसे सर्कल करेगा। और ये लास्ट पार्टिकल ये भी मूव होगा, कहाँ मूव होगा, ऐसे सर्कल में। ये सर्कल करेंगे बट लेकिन ये सभी सर्कल के रेडियस जो है, रेडाई जो है, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? ये R1, R2, R3 these are the radii। अब जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियस से ये पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे हैं अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगेन दे विल हैव द डिफरेंट डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। मान के चलते हैं यहाँ पे कि क्या है, v1, v2 dash 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 v1 are the velocities of the particles m1 की वेलोसिटी v1, m2 का वेलोसिटी v2, लास्ट पार्टिकल m इसका वेलोसिटी vn। these are the velocity, of course linear velocity of particles। यहाँ पे दिखा देते हैं, मीन्स ये पार्टिकल जो है ये परपेंडिकुलरली इसका वेलोसिटी v1, ये दूसरा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी v2, ये बिल्कुल v2 v1 ये परपेंडिकुलर रहेगा r1 को, v1 इज परपेंडिकुलर टू r1, v2 इज परपेंडिकुलर टू r2, ये परपेंडिकुलर रहेगा। और ये ऐसा होगा लाइक दिस, ये v3 और ये v1। ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे v1, v2, v3, v1, ये क्या है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की, जिसके मास क्या है, m1, m2, m रेडियस क्या है इसकी, अलग अलग है। पार्टिकल के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो सर्कल ट्रेस कर रहा है वो सर्कल की रेडियस है। डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग द डिफरेंट masses, having the different radius and having the different linear speeds, but common thing is that axis of rotation is common and angular velocity is common in this case। therefore again we have to see here, we have one known relation from the chapter circular motion। there is the relation between the linear velocity and the angular velocity, linear speed or the angular speed। therefore here by the relation between linear speed and angular speed we have v is equal to r into omega। this is the well known relation between linear velocity, we can say the linear speed and the angular speed। this is the relation v is equal to r into omega। यहाँ पे v क्या है, linear velocity, r क्या है, distance या फिर रेडियस भी बोल सकते हैं, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड और द एंगुलर वेलोसिटी। यही अप्लाई करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए इसका लीनियर स्पीड कितना होगा। सो हियर अकॉर्डिंग टू द लीनियर स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज कितना होगा, v1 इज इक्वल टू क्या है, r1 into ओमेगा। ऐसे क्या होगा, v2 इज द लीनियर स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल, ये भी लिखना पड़ेगा अपन को। therefore v2 is equal to, according to this relation, v2 is equal to r2 into omega। ओमेगा कॉमन, r1 r2 different, v1 v2 different for the different particles। therefore here for the last particle having the mass m, distance rn from the axis of rotation, therefore its linear velocity vn is equal to, that is rn into omega।
means v1 v2 vm gives you the linear speeds of all the particles having the different radius and different linear velocity, but common is that what is common? Angular speed is common. Therefore here the kinetic energy, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं, तो मान के चलते कि पहला पार्टिकल अपना रोटेट हो रहा है, पहला पार्टिकल, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि पहले पार्टिकल की अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। Therefore kinetic energy of first particle is क्या होगा? That is E1। ये फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। E1 is equal to half of the E1 into E1 square। ये फार्मूला अपन ने ये लेक्चर के शुरू में देखा है। जैसे अपन ने लेक्चर शुरू किया तब मैंने वो कंसेप्ट में जाके आपको बोला, एक्सप्लेन किया था कि बॉडी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ दी एम इनटू वी स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला, बट दिस फार्मूला इज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, therefore its kinetic energy will be that is E1 is equal to half of the m1 into v square. Again here the kinetic energy of second particle is क्या होगा? E2 होगा। E2 is equal to क्या होगा? half of the m2 into v2 square। Similarly number of particles कितने अपने पास? n number of particles है, large number of particles है inside that of the body। We have to consider the kinetic energies of all the particles। मीन्स यहाँ पे लास्ट पार्टिकल लेते हैं अपन कि लास्ट पार्टिकल इसका एनर्जी कितना होगा? E is equal to half of the m into v n square। यहाँ पे अपन ने क्या निकाला अभी? The kinetic energy of the first particle, kinetic energy of the second particle, kinetic energy of the last particle। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काय की निकालना है? वो बॉडी की निकालना है, जो बॉडी पूरा रोटेट हो रहा है हमेशा। बॉडी के अंदर क्या है? पार्टिकल। मुझे क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे? मुझे सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। काय का? जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है उसको जोड़ना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा? एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, लास्ट पार्टिकल, ये पार्टिकल का पूरा काइनेटिक एनर्जी अपन ऐड करेंगे तो ये क्या देगा मुझे? ये देगा मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। समझे बात को? ओके, देन नेक्स्ट therefore the kinetic energy of the body is given। therefore the kinetic energy of body, तो बॉडी कैसी है? बॉडी रोटेट हो रही है। इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डैश 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 En। ये सम होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द kinetic energies of all the particles inside that of the body। ये होगा। Therefore I have written here E is equal to E1 plus E2 plus dash 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 E। अब वैल्यू पुट करते हैं। Therefore यहाँ पे E1, अब E1 क्या है यहाँ पे? E1 is the ये वैल्यू। Therefore E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 का वैल्यू होगा ये पुट करते हैं हाफ ऑफ दी m1 v1 स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। therefore हाफ ऑफ दी m2 v2 स्क्वायर डैश 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 लास्ट नंबर का पार्टिकल है, इसकी एनर्जी है, ये कितना होगा? हाफ ऑफ दी m vn स्क्वायर।
ये हो गया क्या समेशन। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है। v1 इक्वल टू क्या रिलेशन v इक्वल टू r इनटू ओमेगा पुट करते हैं। बट हियर v1 इज इक्वल टू r1 इनटू ओमेगा पुट करते हैं सबका यहाँ पे। देयरफॉर हाफ ऑफ द em1 v1 का वैल्यू r1 इनटू ओमेगा r1 ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा स्क्वायर प्लस सेकंड का लिखते हैं हाफ ऑफ द m2 मास है m2 v2 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा ये v2 इज इक्वल टू r2 इनटू ओमेगा। देयरफॉर पुट करते हैं r2 इनटू ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा भाई। ये कहां छोड़ दिया अपन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। डेल्टा डैश प्लस लास्ट पार्टिकल ले लिया अपन ने। ये तो सबके बचा हुआ था पार्टिकल रखा था अपन ने इसके काम आ जाए लेकिन इसका भी डिस्टेंस है इसका एनर्जी हाफ ऑफ दी em इसका डिस्टेंस कितना है r ओमेगा और स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा भाई। लिख लिया स्क्वायर। अब यहाँ से पता चलता है बाय ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन वन थिंग इज कॉमन हियर व्हाट constant half is common and angular velocity square that is omega square is common in this equation. So take these common things outside that of the bracket and all the other things must be written in the bracket inside that of the bracket. Therefore मैं ये half को बाहर ले लेता हूँ और ये omega square को बाहर ले लेता हूँ। Therefore ये क्या हुआ अपना half, ये क्या हुआ omega square कॉमन है जो बचा हुआ है निकालो दैट इज em1 r1 स्क्वायर प्लस em2 r2 स्क्वायर प्लस डेल्टा डैश दैट इज em1 r1 स्क्वायर। अब मुझे देखना है, अब मुझे एक बात आपको पूछनी भी है यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये क्या आपको डिनोट करता है बताइए। आपने मेरे पहले 2 से 3 वीडियो देखे होंगे इसमें मैं यही बात दोहराते आया हूँ, यही बात आपको समझाते आया हूँ कि एम आई आर आई m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डेल्टा डैश ये सब क्या है। ये तो पूरे चैप्टर की जड़ है, ये तो पूरे रोटेशनल मोशन की जड़ है। ये क्या है ये ब्रैकेट जो मैंने लिखा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डेल्टा डैश डेल्टा r ये तो पूरी दिखा रहा है मुझे क्या दिखा रहा है अभी बता। देखो यहाँ पे क्या करते हैं आप एज इट इज ओमेगा स्क्वायर इज पर इसको मैं लिख लेता हूँ काय के फॉर्म में समेशन के फॉर्म में। तो सम है काय का सम है प्रोडक्ट का सम है। प्रोडक्ट काय का है मास का है। मास किसका है पार्टिकल का है और काय का है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का है। तो लिख लेते Therefore, यहाँ पे लिख लेते हैं summation of mi square। अब बात आई होंगी आपके समझ में I start from D1 to M। अब ये जो मैंने टर्म लिखी यहाँ पे summation of mi ri square ये कुछ तो भी बता रहा है ये क्या है। वन में आप बता सकते हो ये क्या है समेशन ऑफ em i r square। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट यू हैव द आंसर एंड दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मैंने लिखा ये टर्म क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। therefore in the next step we have to write here this that is E is equal to what half of the omega square into r। For simplicity we can write half of the I into omega square। This is the final derivation expression for the kinetic energy of the rotating body। Means this is the kinetic energy of rotating body। This is the expression for the kinetic energy of the rotating body। म्हणजे काय करायचं मध्ये E is equal to half of the I into omega square।
हे जे इक्वेशन मला मिळालेलं आहे ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी आय इंटू ओमेगा स्क्वेअर. अशाच प्रकारचं एक इक्वेशन याच्या आधी बघितलं आपण. म्हणजे आपण जेव्हा लेक्चर सुरू केलं त्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की जेव्हा बॉडीचं ट्रान्सलेशन होतं एका प्लेसपासून दुसऱ्या प्लेसपर्यंत, एका पोझिशनमधून दुसऱ्या पोझिशनमध्ये, एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत, तर ती एनर्जी जी असते ते काय असते, ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी म्हणतो होतो आपण. आणि ते फॉर्म्युला पण लिहिला होता आपण, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी एम इंटू व्ही स्क्वेअर. लिहिला होता ना, लिहिला होता. म्हणजेच काय, इथे जे लिहिला आपण आय आणि हा ओमेगा, हा काय आहे, हा तोच आहे की जो ट्रान्सलेशनमध्ये काय होता, मास होता कॅपिटल एम आणि व्ही काय झाला इथे ओमेगा. म्हणजे दिस इक्वेशन इज रिझेम्बल्स एनालॉगस और सिमिलर टू द equation of kinetic energy in the translational motion, that is half of the m into v square. Therefore here in translational क्या लिख सकते हैं अपन, in translational motion क्या होगा कि E is equal to half of the m into v square. Means from this equation number 1 and equation number 2 we conclude here that the जगह किसने किसकी जगह ली, किसने किसकी जगह छीनी, ये बात. यहाँ पे क्या होता है आपको भी पता है, जगह छीनने के लिए, कुर्सी छीनने के लिए क्या होता है, अरे ऐसा करो वैसा करो. अब बॉडी ने क्या किया, अपने को रोटेट कर दिया. जैसे रोटेट कर दिया तो फिर क्या हुआ, ट्रांसलेशनल में जो भी ट्रांसलेशनल मोशन में जो भी नोटेशन थे वो बदल गए. बदलने के बाद क्या हुआ, मीन्स ये जो आई है ये आई का रिजेम्बल्स क्या है, मास. और ये जो ओमेगा दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा सा ओमेगा, अपन ऐसे भी बोल सकते ओमेगा, मेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, ओमेगा है वो, ओमेगा भाई, ओमेगा, मेगा नहीं. मीन्स क्या है, मास इज रिप्लेस बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन. अगेन हियर द लीनियर स्पीड इज रिप्लेस बाय द एंगुलर स्पीड इन द रोटेशनल मोशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्या, ये क्या है, इंपॉर्टेंस of the काय के moment of inertia. Therefore this is the expression of the derivation of the kinetic energy of the rotating body. जब ये बॉडी रोटेट होगा तो आपको क्या देगा, कितना kinetic energy देगा, E is equal to half of the I into omega square. This is the physical significance one. क्या हुआ, physical significance of moment of inertia. Is mass is replaced by the I, v is replaced by the omega, and also linear acceleration is replaced by the what, angular acceleration, linear acceleration, angular acceleration. Therefore these are called the physical significance of the moment of inertia. So this is the lengthy derivation for the kinetic energy of the rotating body. I hope you get understood this topic delivered by me. Thank you for watching the video. Okay.